With that definition, I can also say every individual is an engineer. Yes, sir. Then why to go for engineering degree? It has been segregated, sir, because everybody cannot be master of all fields. So, particular person has inclination towards particular field. So, for the system to be harmonized and properly segregated, medical We engineering have subject, sir. biomedical engineering, Yes, sir. a new field. We are combining information technology with other fields. We are combining medical field with engineering fields. For what purpose? For what purpose? We have bioinformatics. What is that? Are you aware of that? That field? Bioinformatics. No. You are a student. Are you aware of that? Bioinformatics? No? Are you aware of that? Bioinformatics? I think it's a combination of biology and technology. You think, but are you aware of that? Yeah, Okay, good. Biomedical engineering? Are you aware of that? What is that? we are not very much about it. It's latest medical engineering. It is a combination of life sciences and the engineering, especially the software. Treatment of a ulcer through laser is part of it. The different instruments used. We have MBA, but there is one more field, MBA systems. Not only that, we have one more field, MBE. What is that MBE? मुझे नहीं पता, आप पता करिए. Master of Business Engineering. No, sir. Management by exceptions. Management. Management By exceptions. by exceptions. Yes, sir. जो भी है पता करिए. ये MBE एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? Sir, a deviation from MBO. MBO. Yes, management by objectives and management by exceptions. Is a degree. It has been branched out. Principle. Yeah. It's not a degree. There is a degree, MBE. I think what degree. आप लोगों से ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ. आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं. आप लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए. रोज एक डिग्री फॉर्मूला है. दो मेरे ये कुछ काम का नहीं है, पर कुछ इंफॉर्मेशन तो रख रहा हूँ ना मैं. डोंट टेल कि आप कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, आप भी कर सकते हैं. आप क्यों नहीं कर सकते? साहब पेपर बहुत पढ़ते हैं. आप नहीं पढ़ते? एक ही पेपर पढ़ते हैं. एक पेपर में नहीं आता इंफॉर्मेशन. अगेन झूठ मत बोलिएगा. तो वो पेपर पढ़िए जिसमें सबसे ज्यादा आता है, या वो मैगजीन पढ़िए जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है. Why you are not? Why you are not doing? I think I'm doing it. I'm doing it. No, Whatever I've done it, I have raised it. you are not doing. अगर आप ए के बाद सिर्फ बी सीख रहे हैं और जेड नहीं सीख रहे हैं, तो मैं क्या करूं? You are not doing. Or at least with what
pace you are doing, with what speed you are doing is not sufficient. Is not at all sufficient. The reason Guruji we are very lazy यही है कि अपने आप को बेसिक आई थिंक ह्यूमन वीकनेस, इसीलिए मैक्सिमम लोग जहाँ है वहीं के वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग खाली ऊपर उठा दो, उतना फोकसिंग नहीं रहती उतनी. In life for any individual is they are not selfish. I am saying they are not selfish. Yes. You have to be selfish. Yes. ये मत बोलिएगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं. एकदम ठीक है पढ़ाने गुरुजी. You have to be selfish. Second, gossiping is sin. Third, lethargy is poison. As per Mr. President, small dream is a crime. अब मुझे यही 4 पॉइंट्स हिंदी में बताएं. आप अपराध है. अगर आप सोचते ही नहीं हैं तो आप करेंगे कैसे? आप सपना ही नहीं देख रहे तो करेंगे कैसे? क्यों करेंगे आप? अगर मन में एक लालसा आई, उत्पन्न हुई कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, तीसरा पॉइंट क्या था? गॉसिपिंग इज सिन. सिर्फ सपनों का मैदान खड़ा कर रहे हैं और मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? Brain is a source of great ideas, but your output, your work is a source of best skill. With idea, you can do something, but it is ultimately the skill you perform something. What you can do is not important. What you can perform is more important. अब इसे हिंदी में बताइए क्या है इसका मतलब? पर क्या कर रहा है आदमी? Your performance is dependent on how active you are. Your skill is dependent on, directly proportional to your lethargy, or indirectly proportional to lethargy. The less lethargic you are, the more performance will be, better skill will be. So what you are doing, उसमें भी काफी भीड़ है, धक्के खाना पड़ेगा. जब आप जाएंगे तब आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होगा. आज जाइए, रिजर्वेशन कंफर्म करिए. What I mean to say is, get up, it's already too late. At least यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए कह सकता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, आप जाग जाइए. कल परसों जागेंगे तब सवेरा नहीं होगा, आज उठेंगे तभी सवेरा है, तो नहीं. क्योंकि हमने अभी तक एम डिसाइड नहीं किए, हम क्या करना चाहते हैं. Gossiping is sin. चाहते तो do something for yourself. For that, अगर selfishness important है तो वो भी
करिए। सेल्फिश सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं होता, सेल्फ बूस्टिंग के लिए भी होता है। अगर आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर गॉसिपिंग कम करके सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो और क्या चाहिए। अल्टीमेटली विथ somebody's effort you cannot get something। थोड़ा बहुत मिलेगा पर आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। किसी ने इन्वेंट कर दिया रेल का, किसी ने इन्वेंट कर दिया हवाई जहाज का। ये जरूरी नहीं है कि आप हवाई जहाज इन्वेंट करें, पर ये जरूरी है कि आप में जो बेस्ट क्वालिटी है वो सामने आए। और किसी भी मनुष्य का यही उद्देश्य होता है। मानव जन्म इसलिए होता है कि पहले से डिसाइडेड कुछ नहीं रहता, डेस्टिनी कुछ नहीं कहती कि आप ये करेंगे, आपका जीवन का उद्देश्य ये है। आखिरी तक डेथ सेंटेंस तक भी पता नहीं चलता मनुष्य को कि उसका उद्देश्य क्या है। मैं क्यों पैदा हुआ उनको उस समय भी पता नहीं चलता। बस कहते हैं जिंदगी से कोई नाराजगी नहीं है, मैंने सब कुछ पा लिया जो मैं पाना चाहता। पर आपने वो क्या दिया जो दे सकते थे आप? भगवान ने या किसी और ने कुछ पहले से डिसाइड नहीं किया कि आप जीवन में ये करेंगे, आपका उद्देश्य ये है। नहीं, यू हैव टू डिसाइड आप क्या कर सकते हैं। भगवान ने सब इक्विपमेंट दे दिया है, सब आंसर्स दे दिए। आपको क्वेश्चंस ढूंढना है कि आपका रोल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए भगवान ने आपको थोड़ा सा स्वार्थी भी बनाया कि आप पहले अपने आप के लिए तो सोचे। थोड़ा सा मोह माया भी दिया कि आप कम से कम अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचें। सी गॉड और नेचर जो भी है आपको सब चीज दे दिया है भगवान ने, पर हम वो भी नहीं सोच रहे कि हमें करना क्या है। उत्तर मिल जाएगा आपको, लेकिन आप प्रश्न तो करिए। आप प्रश्न ही नहीं करेंगे और उत्तर मिल जाए, ये कभी नहीं संभव है। और मानव जन्म का उद्देश्य यही है कि गेट बेस्ट थिंग आउट ऑफ योर लाइफ। बर्न for that purpose, burn all the neurons if you can। Burning all the neurons means survive even after extinction। उसका क्या मतलब है? मरने के बाद भूत बनकर जीने के लिए नहीं कह रहा वही हूँ। सर, प्रसिद्धि हो लोगों की दिल Get से- maximum out of you। मैक्सिमम। थोड़ा देके क्या करेंगे? आइंस्टाइन ने कुछ दिया, बड़े बड़े लोगों ने कुछ कुछ दिया, आपने क्या दिया? चलिए, आपने सोसाइटी को कुछ नहीं दिया, आपने अपने लिए क्या किया ये बता दीजिए। सिर्फ बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, सिर्फ 5-10 हजार कमा लेना और परिवार को भरपूर पेट खाना खिला देना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। थोड़ी बहुत उपलब्धि है, पर ये सब कुछ नहीं होता। आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो व्हाट यू आर डूइंग फॉर गवर्नमेंट, डोंट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू डू समथिंग फॉर यू। आपको तो गवर्नमेंट दे रही है पैसा, किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि आपको मैं रेस्पेक्ट भी दूंगा।
गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप मेरे लिए काम करें, मैं आपको पैसा दूंगा। रेस्पेक्ट आपको खुद को बनाना पड़ेगा, अपना फील्ड खुद को बनाना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, माई बाप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार बस पॉलिटिक्स करते रहती है, राज्य सरकार भी कुछ नहीं करती है। अरे कोई क्यों करेगा? What you are doing? एक बार हाथ ऐसे जाएगा तो ऐसे ही जाएगा आपका, भीख ही मांगते रहेंगे आप। एक लेवल पे कुछ लोग मांगते हैं, दूसरे लेवल पे कुछ लोग मांगते हैं। Why you expect somebody to give you something? Why don't you give something? हाथ फैलाएंगे तो कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, भीख ही मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। अपने आप को सक्षम बनाएं। छोटे सपने देखकर क्राइम मत करिए, अपराध मत करिए, बड़े सपने देखिए, लेथार्जी हटाइए, दैट इज पॉइजन। वहां ट्रांसफर करेंगे, आपको देख के वो भी, ये बहुत डेंजरस बीमारी है, फैलती है। पूछो 15 मिनट हो गया और 15 मिनट बचा है। हर कोई जागे, सो के कुछ नहीं मिला। रात भर सोते आप सोइए, दिन में जागिए। बहुत सो लिए, अब तो करिए। मिड एज में आ गए हैं, आधी जिंदगी खत्म हो गई है, अब जागिए। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, पर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो से डेवलपमेंट नहीं आएगा। जहां तक जिंदगी पूरी नहीं होती है, give meaning to life by doing something, by performing something. Gossiping छोड़ना जरूरी। समाज में आए हैं, सोसाइटी में आए हैं, पर जन्म तो अकेले लिए है ना। यू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, पर जन्म तो अकेले लिए। भले ही जुड़वा हुए हो, पर जन्म तो अकेले ही लिए और अकेले ही जी रहे हैं। कोई और सांस ले रहा है और आप जी रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? कोई और खा रहा है और आपका पेट भर रहा है। प्रेम से पेट भर सकता है, पर हर दिन प्रेम क्या आपका जीवन चला सकता है? मेहनत आप करिए और आप गेन करिए उससे। सिर्फ जी के बहुत लोग देख चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग सिर्फ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं पता नहीं, बस पैदा हो गए, जन्म ले लिए, इसलिए जी रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा करिए, हर मनुष्य एक्स्ट्रा कर सकता है। अगर मैं पूछूं कि सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तो एक ही आंसर है, मनुष्य। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा आलसी कौन है, मनुष्य। कुछ लोग कछुआ कह सकते हैं, कुछ लोग सांप कह सकते हैं, अजगर कह सकते हैं, पर मनुष्य जानता है, अपने आप को पहचानता है।
वो मार्ग जानता है कि आलस्य से दूर कैसे जा सकते हैं, कैसे आलस्य हटा सकते हैं, पर हटाना नहीं, ये तो सबसे बड़ा आलस्य है। बुद्धि है पर उपयोग नहीं है। पैसा नहीं है पर उसका उपयोग, इसकी वैल्यू पता चलेगी। नीचे आए तब आपको कष्ट हो। स्टेट Before marriage, one should know what they can do. अगर आप खुद के बारे में नहीं जानते, get married. मैरिज करके क्या मिलेगा? खैर आप उस स्टेज से पार कर चुके हैं, आप शादी कर लिए, हो सकता है कुछ लोगों को बच्चे भी हो गए हों, पर इट्स अ हाई टाइम आप खुद के बारे में सोचिए तो सही, और आप बेस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है, जो जॉब है उसे कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वे में करें, या हो सकता है तो चोरी छुप के कोई दूसरा जॉब करेंगे, बट ट्राई टू डू बेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाटएवर फील्ड यू आर, जहां भी हो आप डू द बेस्ट। देयर इज नो सीट फॉर सेकंड बेस्ट। In this competitive world, इस कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में सिर्फ एक ही सीट है। चांसेस बहुत हैं, आपको हो सकता है 10 चांस मिलेगा, लेकिन 10 चांस में केवल बेस्ट को ही सेलेक्ट किया जाएगा। आप जब भी करें, आप 10 चांस में करें चाहे 2 चांस में करें, आपको बेस्ट लाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ वैल्यू है, अदरवाइज नहीं। और हर डिले का जितना चांसेस छोड़ते चले जाएंगे, डिले करेंगे, कंपटीशन उतना बढ़ेगा। आपको हर हाल में करना तो बेस्ट है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। थिंक बिग। किस्मत वाले रहे तो 25-30 चांस मिल जाएगा। खतरा या धोखा कब और कहां से आएगा पता नहीं चलता, आखिरी चांस कब आएगा पता नहीं चलेगा। इस स्टेट में ना रहे कि there is always a next time, लिंगरिंग मत करिए। Think this is the last chance and perform the best। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अगली बार सोचिएगा ये मेरा लास्ट चांस है, अब मेरे को बेस्ट करना है। ये मत सोचिएगा पहला अटेम्प्ट है लेकिन मैं दूसरा अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा या क्लियर करूंगा, या उसके बाद भी तो एक अटेम्प्ट है ना, मैं उसमें क्लियर करूंगा। नो, परफॉर्म up to the best level at this attempt। आप अपना बेस्ट अभी दीजिए। अभी नहीं होगा, ये अगर अटेम्प्ट कर लिए और अभी नहीं परफॉर्म कर पाए तो जब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का नेक्स्ट वाला नहीं, जो इमीडिएट है उसी में अटेम्प्ट करें। आपके पास समय 1 महीना हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 साल हो, बेस्ट आज आप दीजिए। आज बिल्कुल, कल नहीं, आज दीजिए और आज में जिए।
कल में ना चाहिए, कल आएगा कल मेहनत करूंगा। 1 तारीख से आज मेहनत करेंगे। आज 5 तारीख, अगर 5 तारीख है तो आज से मेहनत करिए। आज में जीना सीखिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, कल परसों कभी नहीं आता। आप कभी भी जागिए और देखें, अपने लाइफ देखिए, आप आज में ही अपने आप को पाएंगे, आने वाले कल में नहीं। क्या आपका कभी भी कल आज में बदला? आप किसी भी क्षण प्रेजेंट में ही रहते हैं। आपसे मेहनत क्यों करवाए? आधे अधिक टेंशन To make us understand that we can do certain things. We can really. ये जो आप आधा घंटा में किए हैं वो लाइफ में कभी भी नहीं करते अगर मैं अभी नहीं बताता। बस इसी अंधेरे में रहते कि मुझे पता है याद नहीं आ रहा, वो याद कभी भी नहीं आएगा। जब जरूरत रहेगा एटलीस्ट उस समय तो कभी भी नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है एपीजे का फुल फॉर्म पता करना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन लाइफ में ऐसी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो दिखती है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका महत्व दिखता ही नहीं है, पर उनका महत्व होता है। आज आपके पास आधा घंटा अपने बच्चों के लिए नहीं है, कोई बच्चों के लिए टाइम नहीं है लेकिन पैसा है। वो टाइम निकालिए, अगर आप बिजी हैं तो ये आधा घंटा निकालिए अपने बच्चों के लिए। उनकी परवरिश के लिए, उन्हें संस्कार दें। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जरूर, नहीं तो रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा। थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है पर सब कुछ नहीं होता ना। कोई कुछ पूछना चाहेगा, डिस्कस करना चाहेगा या कुछ सजेस्ट? मैं पिछले 2 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थिंक अगेन, आप किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं? आर यू डूइंग ऑन अ राइट ट्रैक? आप सही जगह पर मेहनत कर रहे हैं क्या, और सही तरीके से कर रहे हैं क्या? सिर्फ यूनिलैटरल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। एक दिशा में सिर्फ मत सोचिए, हर दिशा से देखिए एक ही प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं मैं पूरी जिंदगी भर मेहनत कर दिया पर मुझे आउटपुट नहीं मिला, पर ये नहीं सोचते कि मेहनत कैसे की, सही चीज में किए क्या और सही तरीके से किए क्या। मेहनत करने से पहले डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है, और डिसाइड कर लेने के बाद ये मत सोचिए कि क्या डिसाइड करना है, बस करिए। Think before you speak, and while speaking, don't think. सोच समझकर सही चीज बोले, और बोलने के बाद मत सोचिए कि मैंने क्या बोल दिया। वो तो आपको बोलने से पहले सोचना था कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। Struggle till the last breath. आखिरी सांस तक मेहनत करिए, और इंसान में इतनी क्षमता है कि भूत बन सकते हैं। That means
मरने के बाद भी जी सकते हैं, बाकी जानवरों का भूत नहीं होता मेरे ख्याल से। खैर, जो भी करना है इस जीवन में जीते जी करना है। बात किसने देखा है, बाद में क्या होगा किसने देखा है? जो भी करना है यहां पे करिए। आलस से सोना जो भी है मृत्यु के बाद करिए या जन्म से पहले करिए। हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमम क्या होता है, हम कोई भी एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसे एक ही दिशा से देखते हैं और 2 अटेम्प्ट करते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं अब नहीं हो सकता मेरे से। फिर उसके बाद 6 महीने बाद जगेंगे, फिर से 1-2 अटेम्प्ट मारेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा रिजल्ट, फिर बैठ जाएंगे। फिर 1 साल बाद जगेंगे, फिर थोड़ा सा 1-2 प्रयास करेंगे, नहीं आएगा रिजल्ट, छोड़ देंगे। मैंने 8 साल मेहनत किया और मेरे को रिजल्ट नहीं आया। ये मेरा डेस्टिनी है, किस्मत है। नो, यू शुड नॉट टीच योरसेल्फ लाइक दिस। इट इज अ बैड प्रैक्टिस। कुछ अच्छी चीजें सिखाएं अपने आप को। Every teacher is a student first. आप एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, टीचर आप बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। आप किसी भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं आप मास्टर बन जाएंगे, बट बी अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट। There is always a scope for self improvement and no room is bigger than the room for self improvement. कभी भी लाइफ में ये मत कहिएगा कि मैं अब 80 इयर्स का हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब मेरे को क्या देखना है जीवन में, अब मैंने तो सब देख लिया। ये कभी भी मत कहिएगा कि you have to gain something. किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करना है? मुझे आपने इतना हैवी टॉपिक दिया है, ये सोचना ही मतलब बहुत जरूरी है। सोचना जरूरी है, सोचने के बाद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सोचने में जिंदगी खत्म मत कर दीजिए। थोड़ा सोचिए, फिर मेहनत करिए, फिर रिजल्ट देखिए आपका कैसा आ रहा है, फिर रिजल्ट देखने के बाद फिर से सोचिए, सिर्फ सोचिए। फिर जब मेहनत करने का समय आएगा सिर्फ मेहनत करें। Must always boost you. Fight till the last neuron get burned out. जब तक खत्म नहीं हो जाता, जल के राख नहीं हो जाता, तब तक मेहनत करिए और सही दिशा में करें। Your approach should be correct or right. If your approach is wrong, आप इस दीवार को धकेले जा रहे हैं तो क्या होगा?
जमीन को हिला रहे हैं कि जमीन का मूवमेंट दूसरी दिशा में कर दें, क्या हो? आप एक क्लर्क को पकड़े हैं कि मिनिस्टर बनना है, तो क्या बन सकते हैं क्या? आपको मिनिस्टर बनना है तो अकॉर्डिंगली जहां मेहनत करना वहां करिए। एक क्लर्क को खींच रहे हैं, मार रहे हैं, एक आम आदमी को पकड़ के मार रहे हैं कि तू टेररिस्ट है, बता मेरे को एड्रेस, अपने साथियों का पता बता। आपको आतंकवाद को रोकना है तो टेररिस्ट को कंट्रोल करें, उनके विचारों को कंट्रोल करें। आप एक छोटे बच्चे को पकड़ लिए और उसी को बोल रहे हैं कि अपना एड्रेस बता, सभी बता, वो आतंकवादी है, तो कहां से मिलेगा? बेचारा बच्चा मर जाएगा तब भी नहीं बता पाएगा। आप अपना मेहनत कहां लगा रहे हैं? यू आर इंटेलिजेंट। आप भैंस तो नहीं है, बैल तो नहीं है कि बस सिंग लगा के मारे चले जा रहे हैं। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, कहां मेहनत कर रहे हैं। आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? गुरुजी, फॉर अ हाउसवाइफ वो तो हमेशा अपना घर, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड। How many hours you have in your life? 24 Every day. You have 24 hours a day, and you have. But you don't know ना गुरुजी, वही करते Why you don't know? Again, coming back to the same point. Why you don't know? आप क्यों नहीं जानते अपने बारे में? आप क्यों नहीं जानते क्या करना चाहते हैं? आधी जिंदगी हो गई है, बस आधी बची है। अब तो जागिए। अब सिर्फ परिवार को देख लेना जिंदगी नहीं होता है। There is something beyond that. उसके अलावा भी, उसके बाद भी कुछ है। सिर्फ खाना पीना कर लिया और सो गए, ये लाइफ नहीं है। ये तो हर पशु पक्षी करते हैं। आप नया क्या कर रहे हैं? इंसान हो गए। सर, एक बात पूछने की हिम्मत करें? हाँ, पूछिए। हम लोगों को एक नई रोशनी मिल जाएगी अगर आप बताएं कि आपका लक्ष्य क्या था। लक्ष्य पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, मैंने यही कहा है। यू हैव टू डिसाइड। भगवान ने पहले से आपके जीवन का उद्देश्य नहीं दिया है। भगवान ने अगर पहले से उद्देश्य दे दिया रहता तो मनुष्य कुछ भी जीवन में नहीं सीखता। उद्देश्य तो आपको बनाना है। भगवान का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि मैंने सर्वश्रेष्ठ जीव बना दिया। अब ये क्योंकि मैंने सर्वश्रेष्ठ बनाया है तो उस मनुष्य को डिसाइड करना है कि वो क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है और कैसे करे। कि प्रश्न कैसे ढूंढे। प्रश्न ढूंढना आपका काम है। ढूंढते ही जैसे आप प्रश्न को समझ जाएंगे, परिस्थिति को समझ जाएंगे, इतना ज्ञान भगवान ने दे दिया है कि आप उत्तर ढूंढ लें, अपने आप मिल जाएगा। प्रश्न समझने में आपको कई वर्ष लग सकते हैं, उत्तर मिलने में आपको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। आप सही तरीके से प्रश्न को नहीं समझ पाए और उत्तर ढूंढेंगे तो उत्तर तो जिंदगी भर में कभी नहीं मिलेगा आपको। जब तक कोई करिश्मा ना हो जाए, कोई चमत्कार ना हो जाए, आपको उत्तर नहीं मिलेगा अगर आप प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। सही दिशा में करने के लिए है वो मैं करूंगा, पर जो आपको करना है वो करिए। आप अपने प्रश्नों को ढूंढिए, प्रश्नों को समझिए। प्रश्न समझने के बाद उत्तर तो तुरंत आता है। आप समझ नहीं पाते कि आपको भूख किस चीज की है और आप हर चीज
पाने की कोशिश करते हैं, फिर भी भूख नहीं मिटती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है भूख किस चीज की है। आपने अपने निजी जीवन में भी देखा होगा, आप बस प्रयास कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, पता ही नहीं है। पैसा भी आ गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी शांति नहीं मिल रही है, मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या पाना है, हड़बड़ी है बहुत। गुरुजी इसका ज्ञान कैसे? कम से कम एक दिन में 3 मिनट, 24 घंटे में 3 मिनट खुद के लिए निकालें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आप में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, अपनी बुराइयों को दूर कैसे किया जा सकता है। सिर्फ एक ही दिन बैठ के सब चीज मत सोच लीजिए, एक और वो कभी बहुत देर मत कर दीजिएगा। विधि मैंने बताया है कैसे करना है। सेल्फ स्कैनिंग सर्वश्रेष्ठ रचना कर दी है, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना। The best chemical compound is human mind. Don't you think so? The best chemical compound in entire universe is human mind. What you are doing? You have the best thing. पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है वो आपके पास है। वो ना भगवान के पास है ना किसी के पास है, वो आपके पास है। आप ढूंढिए, आप इससे क्या कर सकते हैं पता करिए। क्योंकि सोने का अंडा आपके पास है, ये आपको डिसाइड करना है आप कैसे यूज करें। एक अंडा से दूसरा अंडा कब बनेगा उसके इंतजार में बैठे रहें, या फिर एक अंडा जो है आपके पास उसका बेस्ट यूज करें। सोने के अंडे में मिट्टी जम रही है, हटाइए। इस मार्केट में लेके आइए और देखिए उस अंडे की कीमत क्या है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? घर में अगर रखेंगे वो सोने के अंडे को तो मट्टी के बराबर है, कुछ नहीं है। आप सोसाइटी में लाइए, संसार में लाइए और देखिए उसका मूल्य आंखिए कितना है। छुपा के मत रखिए। सोने को चमकाना जरूरी है।